کام کی بات فی الحال یہی ہے چیف کہ کرسٹینا لیمبرٹ یقینی طور پر کسی اہم چکر میں آئی ہے۔ دونوں ملکوں کے سفیر اس سے تعاون کر رہے ہیں اور دفتر خارجہ کے کچھ افراد پر جال ڈالا جا رہا ہے۔ چیف، صاف ظاہر ہے کہ کرسٹینا لیمبرٹ کسی خاص منصوبے کے تحت یہاں پہنچی ہے۔ ہو سکتا ہے کل کی میٹنگ میں ہمیں اس منصوبے کی تفصیلات معلوم ہو جائیں۔ کل کا کیا پروگرام ہے؟ بس چیف، لوکو ہاؤس میں نئی وائرنگ کرانی ہے، ٹرانسمیٹر سیٹ کرنے ہیں۔ اٹینڈنٹ کی حیثیت سے ایک آدمی یعنی میں یا آپ وہاں موجود رہیں گے، دوسرا ان ریسیورز پر بیٹھے گا جہاں سے اندر کی آوازیں ریکارڈ کی جا رہی ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ آپ ان سے ذرا فاصلے پر رہیں کیونکہ ہو سکتا ہے ڈی اے فیضی بھی اس میٹنگ میں شریک ہو جائے۔ اور اب ذرا غور کرنے کی بات ہے چیف، ویسے اندر کیمروں کا نظام بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ دراصل چیف، اندر فوٹوگرافی تو نہیں ہو سکتی لیکن اس کے لیے ایک فلیش لائٹ درکار ہوگی۔ میں اس کے لیے ایک نئی حکمت عملی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ چیف، میں وہاں مووی کیمرہ لگا رہا ہوں، ایک ایسا طاقتور لینس والا کیمرہ جو اندر کی تمام مووی بنائے گا۔ ٹرانسمیٹر جو وہاں موجود ہوں گے آوازوں کو ہم تک پہنچائیں گے اور یہاں مانیٹر سے باقاعدہ ان لوگوں کی تمام کارروائیاں دیکھی جا سکیں گی اور یہیں سے مووی کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا۔ خدا کی پناہ، اور تم یہ سارا نظام قائم کر لو گے؟ چیف، شاید آپ اس بریف کیس کو بھول گئے ہیں جو چیف خود ہی ایک غیر ملکی سے حاصل کر کے لائے تھے اور اسے ڈپارٹمنٹ 2A4 کے حوالے کر دیا تھا۔ او مائی گاڈ! حالانکہ میں بریف کیس ہی کو بھول گیا تھا۔ آفتاب کمال ہنسنے لگا تو میں نے کہا، کیوں، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ آپ کے لطیفوں پر کبھی کبھی ہنسی آ جاتی ہے۔ اس وقت میں نے کون سا لطیفہ سنایا ہے تمہیں بریف کیس کو بھول جانے کا؟ تمہارا خیال ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب میں یہ الفاظ اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں چیف؟ آخر میرے اور آپ کے درمیان احترام کا رشتہ بھی ہے۔ نہیں آفتاب کمال، یقین کرو، کم از کم اس وقت مجھے وہ بریف کیس استعمال کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ صورتحال کافی گمبھیر ہے چیف۔ ویسے آپ کو حیرانی ہوگی کہ ڈی آئی جی صاحب بھی اکثر ڈی اے فیضی کے ہاں نظر آتے ہیں۔ تصویروں میں وہ بھی موجود ہیں، وہ تصویریں جو بعد میں نے حاصل کی ہیں۔ میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ ایک دلچسپ خیال ذہن میں ابھر رہا تھا۔ بھرطور ساری باتیں اپنی جگہ۔ اپنے باپ کے بارے میں اتنا میں جانتا تھا کہ جس شخص کی پوری زندگی بے داغ گزری ہو اس نے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو قانون کے لیے نقصان دہ ہو یا ملک و ملت کے خلاف ہو۔ وہ بھلا ایسے کسی کام میں کیسے ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ بس وہ جنون کام کر رہا ہے اور اس نے جناب قبلہ تیمور جمال شاہ کو عقل و ہوش سے عاری کر دیا ہے جو میرے خلاف ہے۔ لیکن یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میرے والد تھے، وہ کچھ بھی کریں میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ میری اپنی ہی فطرت میں کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ مجھ سے برگشتہ ہو گئے تھے۔ بہت دیر تک آفتاب کمال سے اس سلسلے میں باتیں ہوتی رہی۔ ہم نے عمدہ قسم کا کھانا کھایا تھا۔ آفتاب کمال کہنے لگا، اصل میں چیف، بیچارہ انسپیکٹر آفاقی سخت پریشان ہے اور بڑی منت سماجت کر رہا ہے کہ اس کی مشکل حل کر دی جائے۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ فوری طور پر اگر آپ جیل میں شفٹ ہو جائیں تو کم از کم اسے اس خوف و دہشت سے نجات ملے گی کہ آپ اس کی تحویل میں نہیں ہیں، جبکہ ایس پی اکبر خان مسلسل آپ کی طاق میں ہے۔ آپ نے شاید اسے ناراض کر دیا ہے۔ جواب میں مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ جو گفتگو میں نے اکبر خان سے کی تھی اس نے واقعی اسے دماغی طور پر معطل کر دیا ہوگا۔ وہ تو اس وقت ڈی اے فیضی شناختی پیریڈ کے لیے آ گیا تھا، ورنہ ایس پی اکبر خان اور بھی کچھ کرتا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تمہیں جمیل دورانی یاد ہے؟ آپ کی دعاؤں سے چیف۔ اگر جیل میں بھی منتقل کر دیا جاتا ہے تو جمیل دورانی انسپیکٹر آفاقی سے زیادہ اچھا معاون ثابت ہو سکے گا۔ آپ یقین کیجئے چیف کہ میرے ذہن میں یہ بات موجود تھی اور اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ تو پھر آؤ اب اٹھا جائے۔ انسپیکٹر آفاقی اگر اسی طرح دہشت کا شکار رہا تو بیمار ہو کر بستر سے جا لگے گا اور اس کی جگہ کسی اور آدمی کو اس تھانے میں تعینات کرنا پڑے گا۔ فریدہ سے مل لیتے ہیں۔ ہم لوگ تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتے ہوئے گھر پہنچے تھے۔ یہاں تمام لوگ موجود تھے۔ گھر پر ایک سوگ کسی کیفیت طاری تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ فریدہ کو میری غیر موجودگی اور بعد کے واقعات پر خوف بھی ہوگا۔ فریدہ اور رضوانہ باتیں کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے آفتاب کمال کے ساتھ اندر داخل ہوا تو دونوں مجھے دیکھ کر بونچ کی رہ گئیں۔ فریدہ جذباتی انداز میں اٹھی اور پھر صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے سنبھل گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا حال ہے بھئی خواتین آپ لوگوں کا؟ آپ جہانگیر بھائی آپ؟ رضوانہ نے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیوی سے کچھ باتیں کر لوں۔ رضوانہ آفتاب کمال کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ فریدہ سسکتی ہوئی قریب آ گئی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر! آپ کو تھانے میں بند کر دیا گیا ہے تو پھر وہاں آپ کے ساتھ سختی ہو رہی ہوگی۔ فریدہ سسکتی ہوئی بولی اور میرے حلق سے ایک دل خراش کہکہا نکل گیا۔ میں نے کہا، نہیں، میرے ساتھ تو سختی نہیں ہو رہی، لیکن کیا؟
थाने के इंचार्ज के साथ बेशक सख्ती हो रही है, ये सारे कानून के खेल हैं, बाज़ औक़ात कानून के ड्रामे भी करने पड़ते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी अहमकाना सोच की मालिक होगी। तथा तो क्या, केस पर काम हो रहा है भाई, केस पर काम हो रहा है। मगर मैं जानती हूँ डैडी आपके खिलाफ हैं, मुझे भी इत्तलात मिल रही हैं। ओफो, अपने जहन को खराब करती हो भाई। मैं इसलिए अच्छा हुआ आ गया तुम्हारे पास कि कहीं तुम हमाकतों का शिकार न हो गई हो। सब ठीक है, कोई बात नहीं है, एक केस पर काम हो रहा है, केस का मसला हल हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगा। उस वक्त तक पूरी हिम्मत से काम लेना है, कोई अहमकाना बात नहीं करोगी तुम, समझी? मेरा तो सेरों खून खुश्क हो गया है। कमाल की बात है फरीदा, अब कब तक इस कदर अहमक रहोगी तुम? नहीं, माफी चाहती हूँ, वाकई गलती होगी, मुझे क्या मालूम था। और आइंदा भी तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा मरहला अचानक ही पेश आ जाए तो बजाय इसके कि तुम आमकों की तरह आंसू बहाने बैठ जाओ, ये ख्याल कर लेना कि तुम्हारा शोहर जहांगीर जमाल शाह है। अब देखो ना रिजवाना क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में। माफी चाहती हूँ, तो फिर इजाजत। कमाल सिर्फ एक ही है और इसका नाम है आफ्ताब कमाल। चलो भाई, बेचारे इंस्पेक्टर आफाकी की मौत न वाक़ हो जाए, मैंने कहा और हम दोनों बाहर निकल आए। लेकिन एक अजीब वाक़या हुआ था। हम अभी गाड़ी में बैठ ही रहे थे कि मैंने तैमूर जमाल शाह साहब की जीप देखी, कोठी के सामने सुस्त रफ्तारी से गुजर रही थी। तैमूर जमाल शाह साहब ने मुझे देख लिया और बुरी तरह उछल पड़े। DIG साहब इस वक्त यहाँ? मैंने हैरानी से सोचा, आफ्ताब कमाल ने भी DIG साहब को देख लिया था। वो मुझसे ज्यादा बाअमल इंसान था, ये बात हजारों बार साबित हो चुकी थी। DIG साहब की जीप कुछ दूर चलकर ही वापस पलटी थी, लेकिन इससे पहले ही आफ्ताब कमाल ने अपनी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी और उसने उसकी रोशनियां बंद कर रखी थी ताकि DIG साहब की गाड़ी से उस गाड़ी के नंबर न देखे जा सकें। आफ्ताब कमाल ने इंतहाई बर्क रफ्तारी से गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दी और मैं समझ गया था। रास्ते में मैंने कहा, ये DIG साहब मेरी कोठी के सामने से गुजर रहे हैं, क्या कहा जा सकता है चीफ? चलो यार, वरना इंस्पेक्टर आफाकी शहीद हो ही जाएगा। पुलिस जीप जिसमें DIG साहब गुजर रहे थे दर हकीकत आफ्ताब कमाल की बर्क रफ्तार ड्राइविंग का मुकाबला न कर सकी। आफ्ताब कमाल उसे बहुत पीछे छोड़ आया था, लेकिन हम लोग ये बात जानते थे कि DIG साहब की गाड़ी कहाँ पहुँचेगी। चुनाचे फुर्ती से आफ्ताब कमाल ने मुझे थाने के सामने उतारा और फिर बोला, लिबास वगैरह तब्दील करके निहायत बेबसी के आलम में लॉकअप में जाकर लेट जाइए। इंस्पेक्टर आफाकी को भी सूरत हाल बता दीजिए ताकि वो मुंतजिर रहे इस बात का कि DIG साहब वहाँ पहुँचने वाले होंगे। मैं चलता हूँ। शुक्र है कि मेरी गाड़ी का नंबर नहीं देखा जा सका, और अगर देख लिया गया होगा तो तब भी चीफ कौन कबूल करेगा? जो होगा देखा जाएगा, आप फिक्र न करें, आफ्ताब कमाल ने कहा और मुझे मजीद हिदायत देकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। इंस्पेक्टर आफाकी मौजूद था। मुझे इस तरह दौड़कर अंदर आते देखकर उछलकर खड़ा हो गया। क्या कोई खास बात हो गई? हाँ, क्या? घबराने की बात नहीं इंस्पेक्टर, पहले मैं लिबास वगैरह तब्दील कर लूं, मुझे लॉकअप में पहुंचा दो, इसके बाद वहीं पर सूरत हाल बता दूंगा। हुआ क्या है? DIG साहब ने मुझे देख लिया है। कहाँ? मेरी कोठी के सामने। अरे बाप रे, मर गया, अब क्या होगा? अगर हमाकत की बातें की तो वाकई मर जाओगे और बहुत कुछ हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? संतरियों को समझा दो जो ड्यूटी पर मौजूद हैं, किसी कीमत पर यह बात ना कहें कि मैं लॉकअप में मौजूद न था। DIG साहब अगर तशरीफ लाएं तो उनसे यही कहो कि सर आपको गलत फहमी हुई है, ये तो शुरू ही से लॉकअप में हैं, भला कहाँ जा सकते हैं? अच्छा ठीक है, आ रहे हैं क्या वो? हाँ, पीछे पीछे आ रहे होंगे और अब उनकी गाड़ी यकीनी तौर पर थाने की इमारत में दाखिल होने वाली होगी, मैंने कहा और इंस्पेक्टर आफाकी ने दौड़ लगा दी। दोनों संतरियों को उसने इशारों से पकड़कर दबोच लिया और फिर उन्हें जल्दी जल्दी कुछ समझाने लगा। इसके बाद फुर्ती से बाहर निकलकर उसने अहाते को देखा और फिर अपने कमरे में आ बैठा। मुझे पता नहीं कि DIG साहब कब वहाँ पहुँचे, इंस्पेक्टर आफाकी से क्या बातें हुई। मैं तो एक कंबल ओढ़कर करवट लेकर लेट गया था। थोड़ी देर के बाद लॉकअप के दरवाजे पर ताला खुलने की आहटें सुनाई दी और मैं समझ गया कि DIG साहब किबला तशरीफ ले आए हैं। अपने बाप के इस्तकबाल के लिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार हो गया, लेकिन यूं ही करवट बदले और कंबल ओढ़े लेटा रहा। फिर लॉकअप का ताला खुल गया और इंस्पेक्टर आफाकी की आवाज सुनाई दी, जहांगीर जमाल शाह साहब उठिए, DIG साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने बड़े नकाहत भरे अंदाज में करवट बदली और नंदी सी आंखों से इंस्पेक्टर को देखने लगा। क्या बात है? मेरे लहजे में गुराहट थी। DIG साहब आपसे मिलना चाहते हैं, ये मिलने का वक्त है, उठ जाइए जहांगीर साहब, आपको उठना है। मैंने कंबल फेंक दिया। फिर मैंने सामने खड़े हुए DIG साहब को देखा, उनके साथ 2 SP हजरात भी थे। पता नहीं किस मिशन पर निकले थे ये लोग कि आखिर मैं नजर आ गया। DIG साहब तुन निगाहों से मुझे देख रहे थे। गुराए हुए लहजे में बोले, इसे ऑफिस में ले आओ, और इसके बाद वो वापसी के लिए मुड़ गए। उनके साथ 2 SP भी चले गए। इंस्पेक्टर आफाकी ने कहा, जल तू जलाल तू, मेरी तो जान निकली जा रही है।
यकीन करो हो सकता है दिल की हरकत ही बंद हो जाए। अगर ना भी हुई तो मैं गुस्सा मार कर तुम्हारे दिल की हरकत बंद कर दूंगा। कह रहा हूँ अपने आप को होशो हवास में रखो। अच्छा ठीक है आओ, इंस्पेक्टर आफाकी ने कहा। डीआईजी साहिब इंस्पेक्टर आफाकी की कुर्सी पर बैठे हुए थे। मैं अंदर दाखिल हुआ तो डीआईजी साहिब ने गुराई हुई आवाज में इंस्पेक्टर आफाकी को देखते हुए कहा, मुलजिम को जब लॉकअप से निकाला जाता है तो उसके हाथ में हथकड़ियां डाली जाती हैं। क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं इंस्पेक्टर? जी सर, सॉरी सर। इंस्पेक्टर आफाकी घबरा गया। उसने जल्दी से अपने एसआई को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाएं। डीआईजी साहिब शायद अपनी तमाम आरजुएं पूरी करना चाहते थे। मैं खामोशी से खड़ा उनकी सूरत देखता रहा। एसआई ने मेरे दोनों हाथों में हथकड़ियां डाल दी। तब डीआईजी साहिब ने सामने रखा हुआ रोल उठाते हुए कहा, आगे आओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गया। डीआईजी साहिब मुझे गहरी निगाहों से देख रहे थे। मैंने कहा, सर बैठने की इजाजत चाहता हूँ, मुझे बुखार है। एक लम्हे के लिए डीआईजी साहिब के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया था। जिंदगी का दिलचस्प तरीन ड्रामा था ये। वो रंग जो उनके चेहरे से आकर गुजरा था मेरे बुखार होने की वजह से गुजरा था। आखिर बाप थे, लेकिन फिर फौरन ही अपने वकार का ख्याल आ गया। इंस्पेक्टर आफाकी से कहने लगे, इसे बुखार है? जी सर, दोपहर से नज़ला बुखार में मुब्तला हो गए हैं। डॉक्टर को बुलाया? नहीं सर, मैंने इनसे कहा था मगर इन्होंने कहा कि वो कोई इलाज करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ भी पसंदो नापसंद का मसला है। जो ये चाहता है उसे करने दो, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले तुम कहाँ थे? मैंने झुकी झुकी पलकें उठाकर डीआईजी साहिब को देखा और फिर इंस्पेक्टर आफाकी को। मैंने कहा, डीआईजी साहिब क्या कह रहे हैं? सर पूछ रहे हैं आप थोड़ी देर पहले कहाँ थे, इसका जवाब मुझे देना होगा। मैंने कहा, नहीं मैं सर ये लॉकअप में थे। झूठ बोलते हो इंस्पेक्टर, मेरी आंखों को धोखा देना चाहते हो। ये शख्स जितना शातिर है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ इंस्पेक्टर कि तुम इसकी शतरंज की चालों में कैसे आ गए? क्या धमकी दी है इसने तुम्हें? क्या बहकाया है? रिश्वत ली है इसे या ब्लैकमेल कर रहा है तुम्हें? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप तहकीकात कर सकते हैं। भला आपके हुक्म से सरताबी की मजाल हो सकती है मुझे? इंस्पेक्टर आफाकी ने कहा। इंस्पेक्टर मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें किस तरह मजबूर किया इसने? बेधड़क कहो, बेफिक्र होकर कहो। ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके तमाम हथियार जाया हो चुके हैं। मैं इसे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हर ओहदा अपनी जगह मुकम्मल होता है। किसी वक्ती इक़्तिदार के मिल जाने से इंसान की शख्सियत बहुत बड़ी नहीं हो जाती, इसके लिए उम्र गुजारनी पड़ती है। मैंने जिंदगी के तवील साल पुलिस की नौकरी में गुजारे हैं। मेरी अपनी हैसियत अपनी जगह है और इसे किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। ये आमक बारहा मेरे मुकाबले पर आने की कोशिश कर चुका है। ठीक है, ये मेरा बेटा है, लेकिन कानून इन तमाम चीजों से बालातर और अफजल है। मैं जब भी चाहता इसे रगड़ सकता था, लेकिन इसने चंद लम्हाती कामयाबियों को मद्देनिगाह रखकर ये सोचा कि ये अपने बाप से भी आगे बढ़ गया है। सुनो इंस्पेक्टर, मैं इसे सजा दिलवाना चाहता हूँ और जब ये अपने किए की सजा पा जाएगा तो वो मैं हूँगा जो इसकी गुलू खलासी कराऊंगा, लेकिन इस दरमियान में कोई साजिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझे? बताओ क्या कहकर इसने तुम्हें ब्लैकमेल किया और किस तरह ये लॉकअप से निकला? सूरत हाल जरा परेशान कुन हो गई थी। अगर इंस्पेक्टर आफाकी आईजी साहिब की दी हुई इस मराद से फायदा उठाने की कोशिश करता तो बेमौत मारा जाता, लेकिन उसे फैसला करना था। कहीं ऐसा न हो कि फैसला गलत हो जाए, मगर अहमक नहीं था वो। डीआईजी साहिब उसे किसी बुनियाद पर माफ कर देते, लेकिन जो सबूत आफ्ताब कमाल के पास थे उनकी तरदीद भला कैसे की जा सकती थी? उसने पुरवसूख लहजे में कहा, सर आपके सामने झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता मैं। ये गिरफ्तारी के बाद से अब तक यहीं मौजूद हैं, भला बाहर निकलने का क्या तस्वुर हो सकता है? डीआईजी साहिब ने सामने बैठे हुए एक एसपी को इशारा किया और एसपी गर्दन झुकाकर बाहर निकल गया। मैं समझ गया था कि क्या सूरत हाल है। एसपी यकीनी तौर पर संतरियों के बयानात लेने गया था। इस दौरान मुकम्मल खामोशी रही। मैंने भी कोई ऐसा जुमला ना कहा जो डीआईजी तैमूर जमाल की आतिश गजब को भड़का देता। कोई फायदा नहीं था और वैसे भी बहरतौर वो मेरे बाप थे। भला उनके किसी गुस्से से मजबूर होकर मैं उनसे बदजुबानी पर तो आमादा नहीं हो सकता था। चुनाचे खामोश खड़ा रहा। एसपी थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। उसने कहा, नहीं सर, संतरी भी यही कहते हैं कि जहांगीर जमाल शाह साहिब कहीं बाहर नहीं गए और मैं अंधा हूँ, मेरी आंखों ने धोखा खाया है। इंस्पेक्टर आफाकी, तुम्हें कल हेडक्वार्टर मेरे पास पहुँचना है। कल दिन में 10:30 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है मिस्टर जहांगीर जमाल शाह, इस वक्त आपने शातिराना अमल से काम लेकर मुझे ज़हनी तौर पर सदमा पहुंचाया है। आपको इसका पूरा खमियाजा भुगतना होगा। डैडी, मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ? कोई डैडी वैडी नहीं, मैं डीआईजी तैमूर जमाल शाह हूँ, मिस्टर जहांगीर जमाल शाह। जी सर, मैंने आहिस्ता से कहा। डीआईजी साहिब अपनी जगह से उठ गए और थोड़ी देर के बाद बाहर निकल गए।
इंस्पेक्टर आफाकी ने उनके सामने ही सिपाहियों को बुलाकर मुझे लॉकअप में पहुंचाने का इशारा कर दिया था। फिर शायद वो डीआईजी साहब को बाहर तक छोड़ने गया था। 15 मिनट के बाद वापस आया तो बुरी तरह कांप रहा था, चेहरा उतरा हुआ था। कहने लगा, मारा गया ना, आखिर मैं मारा गया ना। इंस्पेक्टर आफाकी, ऐसे बहुत से खेल तुम इससे पहले खेल चुके हो, अगर फजूल बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डीआईजी साहब को उनका शौक पूरा करने की इजाजत मैंने खुद दी हुई है, वरना उनकी मजाल नहीं कि यहाँ एक लम्हे के लिए मुझे लॉकअप में रख सकें। सुनो, कल हेडक्वार्टर जाओ और सख्ती से अपने मौकफ पर डटे रहो। किसी भी धमकी पर ये बात कबूल मत करो कि मैं लॉकअप से निकला था। ये सिलसिला जारी रहेगा और मुकम्मल तौर पर जारी रहेगा। तुम जानते हो कि अगर ये सिलसिला जारी न रहा तो तुम्हारी नौकरी ही नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी को भी खतरा लाहिक हो जाएगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम क्या कर चुके हो। इंस्पेक्टर आफाकी बेबसी की निगाहों से मुझे देखता रहा, फिर बोला, लेकिन नौकरी तो फिर भी खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर आफाकी, लेकिन ये वादा भी मैं तुमसे करता हूँ कि तुम्हारी नौकरी किसी कीमत पर खतरे में नहीं पड़ेगी, समझे? और इसके बाद मुझसे कोई वादा मत लेना। मैं डीआईजी साहब से ज्यादा गुस्सावर हूँ। इंस्पेक्टर आफाकी मुझे कीनातोज नजरों से देख रहा था, मगर बेबस था, कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे देखकर हंसी आ जाती थी। डीआईजी साहब ने जो खेल जाती बुनियाद पर शुरू किया था वो एक दिलचस्प शक्ल इख्तियार कर चुका था और मैं पूरी तरह इसमें दिलचस्पी ले रहा था। दूसरे दिन इंस्पेक्टर आफाकी से कोई 1 बजे मुलाकात हुई। हाँपता कांपता सीधा मेरे पास पहुंचा। कहने लगा, ओ बाबा जी, तुमने तो मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी। कौन सा बुरा वक्त था जब ये जिम्मेदारी मेरे स्पुर्द की गई थी। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा और कहा, क्या हुआ इंस्पेक्टर आफाकी? हुआ तो कुछ भी नहीं, अल्लाह का फजल है, मगर इतनी धमकियां, इतने डरावे दिए गए कि मेरी जान तो निकल ही गई थी। छोड़ यार, तुम्हारी जान इतनी आसानी से कहाँ निकल सकती है। न जाने क्या क्या ड्रामे करते रहे हो अब तक, और एक छोटी सी बात पर कह रहे हो कि जान निकल रही है तुम्हारी। इंस्पेक्टर आफाकी, मुझे चक्कर देना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, सोच लो अच्छी तरह से। ओ भाई जी, अल्लाह के वास्ते, ओ खुदा के वास्ते, तुम अपनी मुंतकिली जेल करा लो, खुद कोशिश कर लो तो तुम भेज दो मुझे जेल। ओ भाई, इधर से और कोई हिदायत भी तो नहीं मिली। एसपी अकबर खान साहब भी वहीं मिल गए थे। वैसे इस वक्त बेचारों ने मेरी बड़ी मदद की और डीआईजी साहब को मुसलसल ये यकीन दिलाते रहे कि मैं गद्दार आदमी नहीं हूँ और कानून का वफादार हूँ। मगर डीआईजी साहब अपनी आंखों से देख चुके थे तुम्हें। अब ये बताओ, क्या अब भी तुम्हें थाने से कहीं जाना होगा? मिस्टर आफाकी, देखो, इन बातों से गुरेज करो। तुम मेरी मुट्ठी में फंसे हुए हो, इतने मासूम और भोले नहीं हो कि ऐसी छोटी मोटी बातें तुम्हें खौफजदा कर दें। एक बार तुम्हें समझा रहा हूँ कि किसी ऐसी बात का शिकार मत हो जो गलत हो। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जो ना हो सके, सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, बिला वजह अगर मुझे गुस्सा दिलाओगे तो वो तुम्हारे हक में नुकसानदेह हो सकता है। मुझे बहुत काम करना है, इतना काम कि तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते, और इसके लिए जाहिर है कि मुझे बार बार यहाँ से निकलना होगा। ओ तो आज भी जाओगे? आज तो मैं जल्दी चला जाऊंगा, और अगर डीआईजी साहब ने छापा मार लिया तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी मुलाजमत ही खतरे में पड़ जाएगी ना, तो पढ़ने देना। लेकिन एक बात भी याद रखना, मैं ही वो आदमी हूँ जो तुम्हें हर खतरे से बचा सकता हूँ। दूसरे किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। कुछ भी हो जाए, मुअत्तल कर दिए जाओ या नौकरी से निकाल दिए जाओ, मैं सारे मामला ठीक कर लूंगा, बिल्कुल फिक्र मत करना। फंस गया हूँ, अब क्या कर सकता हूँ? हाँ, बुरी तरह फंस गए हो, लेकिन डीआईजी साहब ज्यादा से ज्यादा तुम्हें मुअत्तल कर सकते हैं, और मेरे बारे में तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओ बाबा जी, बार बार ये धमकी क्यों देते हो? इसलिए कि तुम बार बार इस मौजू पर बात करते हो मुझसे। लेकिन एक बात तुम भी सुन लो बाबा जी। हाँ कहो। डीआईजी साहब भी मामूली आदमी नहीं है। तुम्हें अगर जाना हो तो सामने के हिस्से से मत जाना, मैं तुम्हें पीछे से निकाल दूंगा। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैंने कहा। फिर मैं आफ्ताब कमाल का इंतजार करने लगा। शाम के 5 बजे आफ्ताब कमाल आया था। सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था। कहने लगा, आपका मेकअप चीफ मैं अपने दफ्तर करूंगा और इसके बाद आपको रवाना होना होगा। 7 बजे, ठीक 7 बजे दफ्तर पहुंच जाइए, क्योंकि इसके बाद हमें अपनी ड्यूटियां संभाल लेना होंगी। ठीक है, मैंने जवाब दिया और आफ्ताब कमाल चला गया। 6:30 बजे मैंने इंस्पेक्टर आफाकी से कहा कि अब मुझे जाना है। उसका तो दम ही निकल जाता था मेरी ये बात सुनकर। खुश होंठों पर जुबान फेर कर बोला, ठीक है जी, जाओ, हमें अल्लाह के हवाले करते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी किसी गलत काम से नहीं जा रहा, चुनाचे तुम फिक्र मत करना। इंस्पेक्टर आफाकी खामोश हो गया। बहरहाल मैं तैयार होकर इमारत के पिछले हिस्से से बाहर निकल आया। इंस्पेक्टर आफाकी का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। डीआईजी साहब किसी कीमत पर यह बात तस्लीम ना करते कि वो मैं नहीं था जिसे उन्होंने देखा था। चुनाचे लाजमी अमर था कि वो थाने की भी निगरानी कराएंगे। उनके लिए मुश्किल काम नहीं था। वैसे अंदाजा हो जाएगा इस बात का भी कि आगे क्या होता है। मैं खामोशी से वहाँ से निकला, एक टैक्सी रोकी और सीधा दफ्तर पहुँच गया।
जहां आफ्ताब कमाल मेकअप का सामान लिए मेरा इंतजार कर रहा था, मेरे चेहरे को बिल्कुल तब्दील कर दिया गया। इसके साथ ही हमने कुछ और इंतजामात किए और फिर बर्क रफ्तारी से चल पड़े। आफ्ताब कमाल ने अपना चेहरा भी तब्दील कर लिया था। हम बस 2 मुलाजिम किस्म के आदमी लग रहे थे। फिर हम एक ऑटो रिक्शा में बैठकर लोको हाउस पहुंचे थे। लोको हाउस एक खूबसूरत इमारत थी। वहाँ मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन हुआ करते थे। उस वक्त 4 आदमी वहाँ मौजूद थे, लेकिन न जाने नायर ने उन्हें क्या हिदायत कर दी थी कि एक लंबी चौड़ी मूंछों वाला शख्स हमारी तरफ देखकर दौड़कर बोला, ओ कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने, तैयारियां भी करनी है और भला तुम लोगों को अपनी ड्यूटी का एहसास भी है या नहीं। मैंने आफ्ताब कमाल को देखा और आफ्ताब कमाल ने मुझे। फिर आफ्ताब कमाल सूखा समूह बनाकर बोला, जी सर हम तैयार हैं। सर के बच्चों जाओ वर्दी पहन लो और रफीक जा इन्हें वर्दी दे दे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किस्सा है। आफ्ताब कमाल मुतमईन था। हमें खास किस्म की वर्दियां दी गई और इसके बाद हम लोगों को अपनी अपनी जगह ड्यूटियों पर तैनात कर दिया गया। मैं एक खास कमरे में उस मॉनिटर पर पहुंच गया जो आफ्ताब कमाल ने तैयार किया था। मेरा कमरा बंद कर दिया गया था और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो चारों ही मुझसे ताउन कर रहे थे।